Hello, good evening, everyone. So we'll continue with our discussion on phenols. So in the last class, we had seen a few of the reactions by which we can prepare phenols. So methods of preparation first by cumene through cumene hydroperoxide. Okay, this we had discussed in the last class. Am I audible to everyone? Okay. So cumene hydrogen peroxide, we had discussed that first the oxygen attacks in the free radical fashion to cumene, and then after this there is acidic hydrolysis. So in the acidic, the H plus is going to attack on this oxygen, not this one, because H2O is a better leaving group than H2O2, and that's how the reaction proceeds. In the end, you are going to get uh, phenol and acetone. So both of these are commercially very important products. That is why this reaction is very much used on the commercial level. Is it clear to everyone? Yes. Hello. Okay. So today we are going to see more methods of preparation, but before that, let us recall some of the things that we discussed in class 11. Okay, in the class 11, there is a section on aromatic compounds. Okay, so aromatic compounds, generally we have seen that they have a tendency to undergo electrophilic reactions. Electrophilic aromatic substitution. Okay, EAS we had studied in class 11. There is entire chapter is there, EAS, in which we study about Fiedel-Crafts acylation, Fiedel-Crafts alkylation, nitration, halogenation, sulfonation, desulfonation, okay, and so many other things. So why aromatic compounds show they have a tendency to show electrophilic aromatic substitution? Why they are prone to be attacked by electrophile? Because in case of aromatic compounds, let us consider the example of benzene. So this is the benzene. Okay, let us say this is the plane in which the benzene molecule is lying. Okay. So this pi electron. Okay. So these pi electrons which are there, these are basically overlapping here and here, above and below the plane of the molecule. Okay. Similarly, these two will form here and here, above and below the plane. Similarly, these two will form a pi bond above and below the plane. Okay. And moreover, it will be in conjugation. So what you are going to have over here is there will be this benzene molecule, and above the benzene molecule there will be a ring of pi electron clouds. Okay. And below the plane of benzene molecule there will be a ring of pi molecule clouds. Okay. Because this overlap can take place from other side also, between these two and these two, hai na? So resonance all of us understand. Is it clear to everyone how we are getting these pi electrons above and below the plane? Okay. Now consider two sorts of species that can attack this. One is a electrophile, another is a nucleophile. Okay. So nucleophile, generally benzene rings do not undergo nucleophilic addition, or for that matter any aromatic compounds, they do not undergo nucleophilic reactions. Why? Because of the simple fact, because nucleophile is electron rich. Okay. And here they are already having negative charge, so nucleophile will not attack this, because negative charges are going to repel each other. Okay. But electrophile is something that is seeking electrons. Okay. Electrophile is seeking electrons. So electrophile can get attracted towards this electron cloud. This can attack this. Okay. That is why in class 11th we have got this chapter, electrophilic aromatic substitution. Is this clear to everyone? Yes, sir. Okay. Now in class 12th there are going to be some more reactions of aromatic compounds that are going to involve nucleophiles. Okay. So aromatic compounds generally do not react with nucleophiles, but under extreme conditions they can undergo what we call as nucleophilic aromatic substitution. Nucleophilic
aromatic substitution. Okay. So normally this is not going to take place because of the reasons that we mentioned earlier, that both nucleophile and benzene ring will be negatively charged, so we don't want that. But in extreme conditions, nucleophilic aromatic substitution is also possible, and it takes place primarily through three mechanisms. Okay. So mechanism one is through benzene mechanism. Okay. So just like carbocation, carbon ion, carbene, and free radicals, benzene is also a reaction intermediate. Okay. So how this is going to take place? Let us say you have a benzene ring in which there is a leaving group, let us say chlorine, okay, and there is hydrogen atom over it. So you have to use a very strong base. Okay. Very strong base. Okay. For example, NH2 minus. Okay. NH2 minus is a very strong base. Or you might have to use high pressure. Okay. High pressure. So in that case, what is going to happen? Because this is a very strong base, this can extract a proton from this H plus. In that case, this hydrogen is going to leave its electron, and this chlorine is going to take away its electron. So I hope you are understanding what we are discussing over here. So in essence, what is going to happen over here? H plus is getting eliminated. So here, there will be some carbon ionic tendency over this carbon. And similarly, this chlorine, this carbon has lost its electron because Cl minus is leaving from this side. So this will have a cationic tendency. Okay. So what you are going to have over here in the end is this thing. There will be a triple bond between this delta plus and delta minus. Is it clear to everyone? Okay. So this intermediate is your basically benzene intermediate. Okay. Benzene intermediate. Now benzene intermediate is something very unique and something very reactive. Okay. Why? Because हाँ बोलो. सर वो क्लोरीन का क्या हुआ थोड़ा फिर से बोलो. क्लोरीन Cl माइनस बन के निकल गया. ठीक है. यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर निकल गया और यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज आ गया. ठीक है. Yes. So this is the benzene intermediate. Now if you look closely, this carbon, what is the hybridization of this carbon? Sp. Similarly, what is the hybridization of this carbon? Sp. Now Sp means bond angle should be 180 degree, right? Here also bond angle should be 180 degree. And how much is the bond angle? Bond angle is actually 120 degree because of the cyclic structure and cyclic conjugation. Okay. So what happens over here? This third pi bond that is getting formed, this is not parallel overlap. Okay. This is not parallel overlap exactly. Okay. This is not exactly parallel overlap. As you have seen in chemical bonding, जब भी pi bond बनता है तो कैसे orbitals हमारे ऐसे ऐसे होने चाहिए. ठीक है. So they should be parallel so that they can overlap, isn't it? लेकिन यहाँ पे जो ये तीसरा पाई बॉन्ड बन रहा है, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ पैरेलल ओवरलैप, बिकॉज ऑफ सिंपल रीजन दैट द बॉन्ड एंगल इज नॉट 90 डिग्री. ठीक है. तो असल में बेंजाइन कैसा होता है? बेंजाइन इज, नाउ दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड, तो यहाँ पे इसका जो वैकेंट ऑर्बिटल है, दिस इज लाइक दिस. ठीक है. सो दैट द एंगल, बॉन्ड एंगल डज नॉट गेट डिस्टर्ब. सिमिलरली यहाँ पे जो वैकेंट ऑर्बिटल है, दैट इज समथिंग लाइक दिस. ठीक है. सो बॉन्ड एंगल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी 180 नहीं, 120 degree. ठीक है. This angle is almost 120 degree. Similarly here also this will be 120 degree. Now these two orbitals are overlapping. Okay. So as you can see, ideally what should happen? These two should be parallel, but if that is parallel, then the angle strain will be a lot, and this cyclic conjugation of benzene will be lost. So that is why parallel overlap is not taking place. A slightly bent overlap is taking place. Is it clear to everyone?
हाँ Sir, can you repeat this one? which part? Sir, this one. Parallel. Okay, so from chemical bonding we understand that in order to form a pi bond, the orbitals should be parallel to each other. For example, px and px, they are going to overlap above the plane and below the plane. Okay, but here if we try to do that, then the angle strain will be 180 degree. Okay, this angle, okay, let us say this is the bond. So if this is the case, then the angle have to strain a lot. It cannot remain 120 degree, right? Because sp aberration bond angle should be 180 degree. So there will be a lot of a strain and the conjugation of this ring will be lost. The ring will not be aromatic anymore. Okay, so that is why this does not take place. Actually bent overlap takes place, and this bond and these bonds are not exactly parallel. It is not like this case. So these are slightly tilted. Okay, and they are overlapping. For the third pi bond, other pi bonds, other three pi bonds are fine. This extra pi bond, it is not exactly parallel only. Is it clear? Yes, sir. Okay, so this was your this is how benzene is formed. Okay, now how benzene undergoes nucleophilic reaction, that we are going to discuss in the next slide. इसको note कर लिया सबने? Okay, now this benzene, you can react with other nucleophile. Okay, so benzenes are very much reactive. न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, इस तरफ शिफ्ट होगा, you are going to get cut न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे माइनस, then H plus, you will get this thing. ठीक है, तो इन एसेंस ओवरऑल इक्वेशन को अगर हम लोग एक लाइन में लिखे, स्टार्टिंग में आपके पास क्या था, यू हैड क्लोरोबेंजीन, राइट? उसमें आपने क्या किया, स्ट्रॉन्ग बेस डाला, क्या हुआ, बेंजाइन रिएक्शन, बेंजाइन में क्या इंटरमीडिएट बन गया, बेंजाइन इंटरमीडिएट में आपने न्यूक्लियोफाइल डाला, न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट कर दिया इसको, और अल्टीमेटली यू आर गेटिंग दिस. ठीक है, दिस इज होल रिएक्शन इन नटशेल. ठीक है, सो यू कैन सी, एज यू कैन क्लियरली सी, यहाँ पे क्लोरीन गायब हुआ है और उसकी जगह एक न्यूक्लियोफाइल आया है. So that is why a nucleophile means negatively charged. So this is nucleophilic aromatic substitution. Is it clear to everyone? Sir, can you explain it once? Which My part? connection. That last part is. ये बेंजाइन का फॉर्मेशन समझ में आया आपको? यस सर. हाँ, तो बेंजाइन पे क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने, कहाँ गया रे, अरे कहाँ चला गया, नेक्स्ट स्लाइड पे था ना. Where is that thing? उड़ गया ये. छोड़ो, ठीक है. So what I discussed over here, आपके पास ये बेंजीन है, ठीक है, तो ये आपका क्या है, बेंजीन हो गया, बेंजाइन. ठीक है, बेंजाइन बन चुका है, इस पे आपने किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया, किसी एक साइड पे वो अटैक करेगा. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स इस साइड शिफ्ट होंगे, we will have this compound, here there will be some negative charge, H plus इसको बाहर से कहीं से मिल सकता है, we are getting this thing. ठीक है, तो देख सकते हैं इन नटशेल क्या हुआ इस रिएक्शन में. आपके पास यहाँ पे जो क्लोरीन था
क्लोरोबेंजीन था बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लोरीन था वो गायब हो गया हमारे रिएक्शन से, और फाइनली क्लोरीन को किसने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, इस न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन कैन बी कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक aromatic substitution. Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay. So this is the method of nucleophilic aromatic substitution through benzene mechanism. Okay. There are other mechanisms also by which this reaction is possible. Okay. उसको हम लोग देखते हैं. And there is second mechanism of nucleophilic substitution. This one is called as SNAR. Okay. SNAR means aryl substitution. ठीक है. So how this aryl substitution takes place? आपके पास benzene ring होता है, ठीक है, and then on the benzene ring you have a strong electron withdrawing group, ठीक है, and on the ortho or para position you have a leaving group, ठीक है. For example, okay, for example I'm considering there is strong electron withdrawing group, that is NO2, and leaving group, that is your fluorine, ठीक है. So this is strong electron withdrawing group. All of us have studied in our EAS that resonance and hyperconjugation are more effective at the ortho and para position, okay. Similarly, so that is why this electron withdrawing group, it will withdraw electrons and there will be a strong delta positive created over here, okay, over the ortho and para positions. Is it clear to everyone? Okay. And on that side what can happen, your nucleophile can attack, okay. So here this, on this delta plus, this nucleophile can attack, this leaving group can leave, and finally you are going to get EWG NE, okay. So this one is called as aryl substitution, okay. For example, here OH minus, you can think OH minus, let us say, is the nucleophile. This is going to come here, F minus इधर से निकल जाएगा, ठीक है, and then you are going to have this NO2 and OH. Is it clear? SNAR is clear to everyone? ठीक है. This is more like SN2 for your benzene ring, ठीक है. Then another mechanism for aryl substitution, sorry, nucleophilic aromatic substitution is through SN1 mechanism, okay. So this happens when a very strong leaving group is present on the benzene ring, particularly in case of diazonium salts. Okay. So let us say you have a diazonium salt. There's this benzene ring N, triple bond N plus. Okay. This is your, let us say, the diazonium salt, benzene diazonium salt. Okay. And if you hydrolyze this, okay, if it undergoes hydrolysis, तो यहाँ पे क्या होता है, oxygen has its lone pair, nitrogen is going to come out. For momentarily there will be a phenyl carbocation created, and this H2O can attack over here, and ultimately you are going to get phenol. Is it clear to everyone? SN1. So this is not going to happen in any other case apart from this diazonium salt, okay. Apart from benzene diazonium salt, okay, this one is never going to happen. Reason why है कि nitrogen is a very strong leaving group, so it leaves
even at the cost of formation of this phenyl carbocation, and ultimately it is going to get hydrolyzed, and this will lead to the formation of phenol. Is it clear to everyone? Okay. So till now, 4 methods of benzene preparation we have seen. Okay. First method we discussed yesterday, वो cumene वाला जो था, oxygen, cumene, and ultimately you are having acetone and phenol. Second, just today we discussed through this benzene mechanism. Okay. So very strong base or high pressure you are going to use, and ultimately through the benzene mechanism, this is the product that you are going to get. Okay. And third method is through SNAR, when a strongly electron withdrawing group is present and the nucleophilic substitution takes place at the leaving group, if the leaving group is present at the ortho or para position. Okay. This is criteria for this. Aryl substitution is not going to take place at meta position. Okay. The condition must be, this configuration must be ortho or para. Okay. Mostly ortho, because electron withdrawing group is more prominent at the ortho position. Okay. So ortho reaction rate will be very high. And then we discuss third mechanism, that is hydrolysis of benzene diazonium salt. So by hydrolysis of benzene diazonium salt, this phenyl carbocation will get formed, and you are going to have phenol in the end. All these reactions are clear to everyone? So last one mechanism, can you tell me? Last one बताया ना mechanism. Nitrogen is a very strong leaving group. That is why it is going to get formed, even though this phenyl carbocation is very much unstable. And this takes place for a very small moment, because phenyl carbocation is highly unstable. So just in the moment, water is going to attack and phenol is going to get formed. Is it clear? Okay, sir. Then like this. So these are the methods of preparation of your phenols. Okay. So now we are going to look at some of the reactions of phenol. Everyone noted this down? Just note it down. लिख लिया सबने इसको? Yes, sir. Okay. So now we are going to look at some of the reactions of phenol. Okay. Okay. Anyone remembers any reaction of phenol that is studied in class 11? So the first category of reactions of phenol is electrophilic aromatic substitution. Electrophilic aromatic substitution. Okay. EAS. For entire chapter you must have studied substitution. Okay. So entire chapter you would have studied for this reaction of benzene with different electrophiles. Okay. So all of us know that OH is a activating group, right? So OH is going to activate the ring, and that is why the electrophilic aromatic substitution, whenever it takes place, the major product will be meta and para. Is it clear to everyone? Everyone remembers this? Okay. So I'll just recall what all things we discussed in this in class 11. Okay. So electrophilic aromatic substitution can take place for, okay, I'm drawing this, for phenols we are seeing. Okay. This phenol can undergo reaction with, let us say, RCl plus, okay, and undergo reaction with RCl AlCl3. What is going to be the product? OH, and on ortho and para position there will be R. Okay. Similarly, para product. Similarly, this one can undergo
R C double bond O Cl AlCl3, and then you are going to have this is acylation. Then can undergo nitration. Okay. How nitration takes place? Uh, NO2 plus. Okay. NO2 plus is going to attack here, and you'll get orthonitrophenol or paranitrophenol. Okay. This is example of your nitration. Then what else? Now this can also undergo sulfonation, SO3. In that case, we have OH, SO3H. Okay. Then what else? Halogenation, H2, AlCl3. We're going to have OH. Okay. So these are different reactions which all of you would have studied in your class 11. Okay. So this is example of your Friedel-Crafts alkylation. This is the example of Friedel-Crafts acylation. Okay. This is example of nitration. This is example of your sulfonation. Okay. And then this example of your halogenation. These things are clear to everyone? आगे बढ़े? सर आप थोड़ा रुक सकते हैं मतलब लिखो लिखो. Is it clear? Note कर लिया सबने इसको? yes Okay. Then in a similar category of electrophilic aromatic substitution, कुछ और नए reactions हैं जिसका मैकेनिज्म ES जैसा ही होता है जो शायद आप लोगों ने क्लास 11th में नहीं पढ़ा होगा. ठीक है. So now we are going to look at all of these one by one. ठीक है. एक होता है आपका Kolbe-Schmidt reaction. Kolbe
So all of this are under the category of your EAS only. ठीक है, सारी का mechanism similar होगा. Generation of electrophile, attack of electrophile, and finally restoration of aromaticity, if you remember. ठीक है, तो कोल्बे स्मिथ रिएक्शन में हमारा रिएक्टेंट एजेंट क्या होता है? फिनॉल. ठीक है, और इसमें हम लोग मीडियम का यूज करते हैं बेसिक. तो बेसिक मीडियम में क्या होगा? फिनॉल से H+ चला जाएगा and that is going to form this O-. ठीक है, तो ये कंपाउंड बन गया. नाउ इस दोनों में ज्यादा अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन है? OH इज बेटर एक्टिवेटिंग ग्रुप और O- इज बेटर एक्टिवेटिंग ग्रुप? बोलो थोड़ा सोच के. सर OH. OH. वाई? सर उसका लोन पेयर से मतलब वो आपका रेजोनेंस में कर सकते हैं. लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर सकता. नहीं, रेजोनेंस तो दोनों में होगा. ठीक है, दिस इज बेटर एक्टिवेटिंग ग्रुप. ठीक है, दिस इज बेटर एक्टिवेटेड बिकॉज O- क्या है? O- पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये रेजोनेंस और ज्यादा करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा. ठीक है, जबकि यहाँ पे जो रेजोनेंस होगा उससे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वो नहीं करना चाहता. ठीक है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा. इज इट क्लियर? यस सर. बेटर एक्टिवेटिंग दैट बेंजीन. ठीक है, तो इसको हमने बेसिक मीडियम क्यों किया, इसको बेटर एक्टिवेट क्यों किया? क्योंकि जो इलेक्ट्रोफाइल अभी आने वाला है दैट इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे हमारा होता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड कि इसका ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, सो दिस इज नॉट गोइंग टू एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, बट बिकॉज दिस रिंग इज हाईली एक्टिवेटेड, तो CO2 भी उसके लिए एज इलेक्ट्रोफाइल काम कर जाता है. जैसे CO2 का अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका आप ऐसे बना सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, O- and C+. तो in this resonating structure there is a deficiency over this carbon. ठीक है, so that is why this can act as electrophile. Is it clear? समझ में आ रहा है ये पॉइंट सबको? सर वो पॉजिटिव का उधर फिर से समझेंगे कैसे. हाँ, ये रेजोनेंस आपने करा दिया ना, इस तरफ शिफ्ट कर दो इलेक्ट्रॉन को, तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव. ठीक है, now this can act as electrophile. तो just like previous case में फीडल क्राफ्ट असैलेशन, फीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या होता था? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता था. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे बिकॉज O- फिनॉक्साइड आयन इज हाईली एक्टिवेटेड, तो यहाँ पे क्या होगा? CO2 का अटैक ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे होगा. ठीक है, तो दोनों के प्रोडक्ट्स हम लोग बना लेते हैं. ऑर्थो पोजीशन पे अगर ये CO+ ने अटैक किया, लेटेस्ट से इस पोजीशन पे इसने अटैक किया. ठीक है, किस तरह से होगा अटैक? तो सबसे पहले ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, these two electrons are going to shift towards this, ताकि ये इसकी इलेक्ट्रॉन इसकी डिफिशियंसी को शांत कर सके. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ? आपने C डबल बॉन्ड O लग गया, और यहाँ पे कॉन्सिक्वेंटली इस तरह से इलेक्ट्रॉन आया, तो इधर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर कॉन्जुगेशन में ये डबल बॉन्ड हो गया. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, एंड सिमिलरली दिस कैन बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड. इसको आप रेजोनेंस स्टेबलाइज कर सकते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर बना के, यहाँ पे, यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे लाइक दिस. अल्टीमेटली क्या होगा? यहाँ पे ये इधर आएगा O-, ये दोनों बॉन्ड इधर आ गए, ये दोनों बॉन्ड इधर आ गए. ठीक है, इस कार्बन पे क्या हुआ? पॉजिटिव. यहाँ पे क्या है? CO-O-. ठीक है, तो अब लास्ट स्टेप में क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. हम जो मैकेनिज्म लिख रहे हैं सारे EAS में यही होगा. ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, एरोमेटिसिटी लॉस्ट होगा. ठीक है, फिर से लास्ट स्टेप में एरोमेटिसिटी रीगेन होगा. ठीक है, तो यहाँ पे रीगेन कैसे होगा? H अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला जाएगा, so that is how you are going to get this thing O- COO O-. Is it clear? फिर आप इसका हाइड्रोलिसिस करा दो, सॉरी हाइड्रोलिसिस H+ एडिशन करा दो इसमें.
So this is okay. So this is the final product that we are going to get. ठीक है, O minus के ऊपर H plus लग गया, तो OH and this is COH. Can someone tell me the name of this compound? इस कंपाउंड को आप लोगों ने देखा है पहले क्लास 11th में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में. ठीक है, किसी को नाम याद है इसका? ठीक है, दिस इज सैलिसाइलिक एसिड. सैलिसाइलिक एसिड. ठीक है, इन अ सिमिलर वे दिस अटैक कैन हैपन एट द पैरा पोजीशन आल्सो. वहां पे आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी OH COH. ठीक है, लाइक these reactions are clear to everyone. दोनों रिएक्शन क्लियर है. कोल-बेस्ड रिएक्शन. ठीक है, नाउ सैलिसाइलिक एसिड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड कमर्शियली. ठीक है, देखा जाए एक तरह से तो इसमें क्या है, एक तरफ से आपके पास एक अल्कोहल ग्रुप है. ठीक है, और दूसरे तरफ से क्या है आपके पास एक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. ठीक है, COOH इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. ठीक है, दिस इज अल्कोहल, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड. तो इसका आप रिएक्शन किसी अल्कोहल से भी करा सकते हैं. स्टेरिफिकेशन हम करा रहे हैं. ठीक है, तो स्टेरिफिकेशन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलके ईस्टर बनाते हैं. तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड का रिएक्शन आप किसी अल्कोहल से करा सकते हैं. तो वहां पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो पोर्शन है वो आपका रिएक्ट कर जाएगा. फिर इसका रिएक्शन आप किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से करा सकते हैं. तो जो अल्कोहल पोर्शन है वो उस कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट कर जाएगा. फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल आपको देते हैं. ठीक है, जैसे इस कंपाउंड का आपने रिएक्शन कराया किसके साथ, लेट अस से CH3COOH के साथ. तो CH3COOH इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड है. तो स्टेरिफिकेशन कार्बोक्सिलिक एसिड का किसके साथ होगा, इसके अल्कोहलिक पोर्शन से. अल्कोहलिक पोर्शन पे आपने क्या किया, CH3COH का रिएक्शन करा दिया. यू आर गोइंग टू गेट C डबल बॉन्ड O CH3. ठीक है, और फाइनली ये कंपाउंड आपका क्या हो गया, ये इधर ऐसे ही COH. इज इट क्लियर टू एवरीवन कैसे हो रहा है ये स्टेरिफिकेशन? स्टेरिफिकेशन का आपको आइडिया है ना पहले से? नहीं है तो ये देख लो. ठीक है, स्टेरिफिकेशन कैसे होता है. स्टेरिफिकेशन में आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड आता है. ठीक है, RCOOH. ठीक है, और किसका, इसका रिएक्शन होता है किसी R-OH के साथ. ठीक है, फाइनली यहाँ पे वाटर आप निकाल लेते हैं, OH इधर से और H प्लस इधर से. वाटर निकल गया and then you are going to get the compound RC double bond O R dash. ठीक है, this is a esterification reaction basically. तो यहाँ पे भी वही हुआ है. This is the alcohol ROH, this is the carboxylic acid COH. वहां से आपने H निकाला, यहाँ से OH निकाला and you are going getting this compound. Is it clear to everyone? Yes sir. ठीक है, तो इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटाइल सैलिसिलेट. ठीक है, सिमिलरली इस कंपाउंड का रिएक्शन अगर आपने कराया होता किसी अल्कोहल से, लेट अस से CH3OH, तो वहां पे इसका जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पोर्शन है, दिस इज गोइंग टू बी एक्टिव व्हेन रिएक्टिंग विद एन अल्कोहल. और प्रोडक्ट जो आपको मिलता है वो क्या मिलता, तो अल्कोहल पोर्शन है ऊपर का एज इट इज छोड़ दो, अल्कोहल आपका OH एज इट इज है. इस पोर्शन को आपने रिएक्ट करा दिया CH3COO CH3 के साथ. ठीक है, सो दिस इज मिथाइल सैलिसिलेट. मिथाइल सैलिसिलेट. ठीक है,
ओके तो दोनों जो प्रोडक्ट बने हैं एसिटाइल सैलिसिलेट मिथाइल सैलिसिलेट दीज आर ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस। ठीक है, आपका जो एसिटाइल सैलिसिलेट है दैट इज यूज्ड इन एस्पिरिन टैबलेट्स। ठीक है, पेन किलर में ही यूज होता है ये। और ये जो आपका मिथाइल सैलिसिलेट है इसका टेक्निकल नेम है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ठीक है, तो ग्रीन कलर के कुछ कुछ क्या बोलते हैं मेडिकल शॉप्स में आपको क्रीम वगैरह मिलेंगे जो बहुत ठंडा टाइप का इफेक्ट देते हैं ना, आयोडेक्स वगैरह, तो उसके अंदर ये चीज होता है, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन होता है। ठीक है, आयोडेक्स सीटीसी, आयोडेक्स मूव जो भी है। ठीक है, तो दिस इज नेचुरली अकरिंग, बहुत सारे पेड़ पौधे पे मिला जाता है और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। ठीक है, ओके सो ज्यादा हो गया। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग को बस यहीं तक सीखना था कि किस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है एंड अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू गेट सैलिसिलिक एसिड। उसके आगे का जस्ट हमने ऐसे ही बता दिया। ठीक है, इज इट क्लियर? कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस इज क्लियर टू एवरीवन? Yes. ओके, चलो तो ये भी एक कैटेगरी हो गया आपका ईएएस का। आगे बढ़ते हैं, सबने नोट कर लिया इसको? Sir. ओके, देन सेकेंड रिएक्शन इन द सेम कैटेगरी, ईएएस की कैटेगरी में ही फिनॉल का एक और रिएक्शन आपके सामने। दिस इज योर आरटीआर। ठीक है, आरटीआर करके कोई गाड़ी भी होता है ना, अपाची आरटीआर। ठीक है, दिस इज नॉट दैट। यहाँ पे क्या होता है, दिस इज रीमर टीमर रिएक्शन। रीमैन टीमर रिएक्शन। ठीक है, रीमैन टीमर रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है, दिस इज ऑल्सो बेसिकली ईएएस। यहाँ पे आप क्या करते हैं, फिनॉल है आपके पास, इसमें आप क्या डालते हैं, CHCl3 प्लस OH माइनस फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाता है, सैलिसैल्डिहाइड मिल जाता है। ठीक है, OHC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, यहाँ पे भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। दिस प्रोडक्ट इज योर सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, पिछला वाला सैलिसाइलिक एसिड था, दिस इज सैलिस, कैसे लिखते हैं, सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, ओके तो इसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं कैसे कैसे हो रहा है इसमें। ये भी ईएएस है, सारे ईएएस में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और तीसरा रेस्टोरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं, तीनों स्टेप कैसे कैसे हो रहे हैं इसमें। फर्स्ट स्टेप इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जनरेट कैसे हो रहा है, तो आपने रिएक्शन में जो डाला है उससे जनरेट होगा CHCl3 प्लस OH माइनस। ठीक है, क्या करता है ये चीज, अब देखो CHCl3 इज योर कार्बन से हाइड्रोजन और इससे 3 क्लोरीन निकले हैं। ठीक है, तो दिस कार्बन विल बी हाईली एसिडिक। OH माइनस क्या काम करता है, यहाँ से H प्लस खींच लेता है, वी आर गोइंग टू गेट H2O प्लस CCl3 माइनस। ठीक है, इनफैक्ट CCl3 माइनस का आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो क्योंकि यूज होने वाला है। This is CCl माइनस। ठीक है, नाउ Cl माइनस इज अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप। तो Cl माइनस क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है एंड अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू हैव दिस डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कार्बिन कब बनता है, जब एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से दो ऐसे चीज जुड़े हो जो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकले और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके निकले। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकला और Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकला, दैट इज व्हाई यू आर गोइंग टू गेट दिस कार्बीन। ठीक है, नाउ if you look closely this carbene is a electrophile। ठीक है, इसमें इसका कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, so this is basically our electrophile in this case। is it clear to everyone? हाँ बोलो। चलो ठीक है,
नहीं बोलना तो चुप रहो। सर वो ऑक्टेट वो कंप्लीट मतलब किसका? कार्बन का क्या हुआ मतलब? ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 6 ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यस नेक्स्ट स्टेप इज अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो ये आपका बेंजीन रिंग है, इस पे आपने क्या किया, CCl2 जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है उसका अटैक कराया। तो अगेन इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, राइट। तो इसका लेटेस्ट से हम ऑर्थो पे करा रहे हैं। ऑर्थो पे कैसे करेगा, इसको इधर शिफ्ट कर दो, सो दिस बिकम्स OH, इस कार्बन पे पॉजिटिव आया, इस कार्बन पे CCl। तो इस क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस पे माइनस और इस पे प्लस, जो कि माइनस को न्यूट्रलाइज कर देगा। सो दिस इज द कंपाउंड, ठीक है। नाउ ये प्लस चार्ज आपका क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, ठीक है। इसको इधर शिफ्ट करो तो प्लस चार्ज इधर आ जाएगा, फिर इसको इधर शिफ्ट करो प्लस चार्ज इधर आ जाएगा। तो 2 बार रेजोनेंस कराने के बाद आपके पास जो कंपाउंड दिखेगा दैट विल बी OH, दिस इज योर डबल बॉन्ड, दिस इज योर डबल बॉन्ड, यहाँ पे प्लस आ चुका है, दिस इज CCl माइनस, ठीक है। अगेन ये पूरा रिएक्शन किस में हो रहा है, वाटर में हो रहा है, ठीक है। तो H3O प्लस, ठीक है। तो C माइनस इज अ वेरी गुड, क्या बोलते हैं उसको, C माइनस इज अ वेरी गुड बेस, ठीक है। हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में देख चुके हैं, ठीक है। R माइनस इज अ वेरी गुड बेस। तो H प्लस यहाँ से तुरंत ले लेगा, we are going to get this compound OH CHCl2, ठीक है। यहाँ पे प्लस है। अब स्टेप 3 हमारा जो लास्ट में होता है दैट इज रिस्टोरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, रिस्टोरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, ठीक है। एरोमेटिसिटी यहाँ पे रिस्टोर हो जाएगी, कैसे रिस्टोर हो जाएगी, तो जो H प्लस है वो डीप्रोटोनेट कर देगा, ठीक है। रिस्टोरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी इज आल्सो नोन एज डीप्रोटोनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे क्या है CHCl2, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो क्या होगा, डीप्रोटोनेट कर देगा, H प्लस बन के निकल जाएगा, ठीक है। एंड फाइनली वी आर गोइंग टू गेट दिस कंपाउंड CHCl2 एंड H, ठीक है। अगेन इसमें आपने क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया है, ठीक है। ओके सॉरी मैंने गड़बड़ कर दिया, हाइड्रोलिसिस आपने इधर ही कर दिया था। तो इधर ही जैसे आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो Cl माइनस भी क्या होता है, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, Cl माइनस को OH रिप्लेस कर देगा और एक कार्बन पे 2 OH नहीं रह सकते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा OH और इस कार्बन पे 2 क्लोरीन निकाल के OH लगा दो, एक कार्बन पे 2 OH नहीं रह सकते, H2O निकल जाएगा, तो यू विल गेट एल्डिहाइड। इज इट क्लियर टू एवरीवन, यहाँ से भी बना सकते हैं, ठीक है। इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया आपने और फिर Cl को OH ने रिप्लेस कर दिया CHO। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर आप थोड़ा स्क्रीन को शिफ्ट कर सकते स्क्रीन को शिफ्ट कर सकते हैं मतलब? मतलब लेफ्ट साइड स्क्रॉल कर सकते हैं? नहीं नहीं कर सकते। क्या देखना है आपको, ये CHO क्लियर नहीं है, ये वाला स्ट्रक्चर। यस सर। हाँ ये वाला स्ट्रक्चर बेसिकली आपका यही है, ऊपर जो हमने फाइनल प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चार्जर किधर? ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर बोलिए। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का लास्ट स्टेप में आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है वहाँ पर CHO2 है। CHO2 कहाँ है? CHO उसके नीचे आपने कुछ लिखा है। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का लास्ट, दिस इज क्लोरीन। सर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का लास्ट, ये CHCl2 है, ठीक है। क्लोरीन है नहीं, ये दोनों क्लोरीन, तो ये Cl2, ठीक है। ओके सर। ओके, ठीक
ठीक है, इसको नोट कर लिया सबने, आगे बढ़े। Yes. ठीक है, तो दिस इज रीमर टीमर रिएक्शन। ठीक है, रीमर टीमर रिएक्शन का एक और दूसरा वर्जन होता है। रीमर टीमर रिएक्शन अगर राहुल गांधी ने कराया तो ये प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अगर मोदी जी ने कराया तो कुछ और प्रोडक्ट बनता है। तो दैट इज नोन एज योर मॉडिफाइड आरटीआर। ठीक है, मॉडिफाइड आरटीआर में आप क्या करते हैं, वहां पे आपका रिएजेंट थोड़ा अलग होता है, रिएक्टेंट वही रहता है, बेंजीन रिंग। CHCl3 हम लोग नहीं यूज करते, हम लोग CCl4 यूज करते हैं। ठीक है, प्लस H2O लाइक दिस। तो यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट अपने को मिलता है दैट इज सैलिसाइलिक एसिड, OHC डबल बॉन्ड O। एक मिनट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके दिखाना चाहिए ना। दिस इज डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपका क्या हो गया, सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, तो दिस इज योर सैलिसाइलिक एसिड। तो मैकेनिज्म आप लोग समझ सकते हैं क्या हुआ होगा इसमें, समझ सकते हैं क्या? चलो ठीक है, हम करके बताते हैं। एक मिनट, यहाँ पे H2 उसको ध्यान से लिखो। OH माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, तो CCl3 प्लस OH माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो कार्बिन नहीं बन सकता। ठीक है, नाउ दिस CCl4 itself can act as a electrophile। ठीक है, क्योंकि इस कार्बन के पास क्या है, चार तरफ से इसको इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, मतलब इससे। ठीक है, तो इस कार्बन पे क्या होगा, बहुत सारा डेल्टा प्लस जनरेट होगा, तो दिस इटसेल्फ कैन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, और फिर इसका अटैक करा दो कहाँ पे, para पोजीशन पे, एक Cl ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है, एक Cl निकलेगा, फिर हाइड्रोलिसिस करोगे 3 Cl बचेंगे। तो जिस तरह पिछले प्रोडक्ट में लास्ट में क्या हो रहा था, 2 Cl बच रहे थे, एक H बच रहा था, और इसकी आपने हाइड्रोलिसिस कराई तो क्या हुआ, CH, Cl को OH रिप्लेस कर देंगे, और एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल है, H2O निकाल दो तो क्या मिल जाता था अपने को, अल्डिहाइड मिल जाता था। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ कुछ वैसा ही होगा। यहाँ पे फाइनली ये हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे तीनों जगह क्लोरीन ही है, CCl। इसकी जब आप हाइड्रोलिसिस कराओ तो कार्बन पे क्या आएगा, 3 OH आ जाएंगे। ठीक है, और फिर एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल है तो यहाँ तो 3 आ गए, तो H2O निकाल दो, और इस केस में आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ठीक है, बाकी सारे स्टेप्स वैसे ही रहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक की तरह, जैसे पिछले केस में देखा था। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मॉडिफाइड आरटीआर इज क्लियर? बोलो बालको। Yes, sir. फिर ये मॉडिफाइड आरटीआर का ही एक छोटा भाई होता है। ठीक है, राहुल गांधी का कोई है छोटा भाई? नहीं है ना, नहीं है, जो भी है। तो इस रिएक्शन का नाम है होगो रिएक्शन। ठीक है, हाउबेन हाउस रिएक्शन। ठीक है, होगो रिएक्शन, HO कैपिटल लिखना है। ठीक है, HO कैपिटल क्यों लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये नॉर्मल फिनॉल्स ये रिएक्शन नहीं देते। ठीक है, ये रिएक्शन तभी होगा जब फिनॉल पे मेटा पोजीशन पे 2 OH ग्रुप लोग। ठीक है, ठीक है, तो इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, पहले क्लास में हम बताए थे, लास्ट क्लास में फिनॉल का कैटेगरीज देख रहे थे। व्हाट इज द नेम ऑफ कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड, मेटा ड्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्या बोलते हैं इसका कॉमन नाम, क्या है? नहीं याद है किसी को? हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन नहीं, हाइड्रोक्विनोन पैरा वाला होता है।
दिस इज रिसोर्सिनॉल, ठीक है। तो ओनली रिसोर्सिनॉल इज गोइंग टू गिव दिस कंपाउंड, नॉट कैटेकॉल और हाइड्रोक्विनोन, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको हो करके लिखा, साइंटिस्ट का भी नाम है हो, और 2 OH होंगे तभी रिएक्शन होगा, ठीक है। बहुत सिंपल रिएक्शन है। क्या होता है इसमें, RCN आप डालते हैं, ठीक है, RCN प्लस HCl प्लस, अरे यार एरो मेरा हमेशा छोटा हो जाता है, RCN प्लस HCl प्लस ZnCl2, दिस इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या होना चाहिए। RCN प्लस ZnCl2 से आप लोग थोड़ा अभी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग पढ़ लिए, तो आप लोग को थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट करने आना चाहिए, ठीक है, कि क्या हो सकता है रिएक्शन में। जैसे RCN है, RCN बोले तो RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। ZnCl2 क्या करेगा, ZnCl2 इलेक्ट्रोफाइल है। जनरली ZnCl2 हम लोगों ने लास्ट टाइम कहाँ देखा था, ZnCl2 हम लोगों ने जब EAS में देख रहे थे, EAS में क्या करता है, ये Cl माइनस को खींचता है, ठीक है। जैसे हाँ भूल गए, हमारा ये जो रिएक्शन था लुकास टेस्ट, ठीक है, लुकास टेस्ट में भी यही करता है, ZnCl2 प्लस HCl। तो ZnCl2 वहां पे क्या कर रहा था, HCl में से Cl माइनस खींच रहा था, यहाँ पे भी वही करेगा, Cl माइनस खींचेगा, ZnCl3 माइनस प्लस H प्लस, ठीक है। अभी H प्लस क्या कर सकता है RCN में, RCN में इसको देखेगा नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, उस पे जाके अटैक कर देगा। फाइनली यू आर गोइंग टू गेट RC डबल बॉन्ड ONH, और कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अभी ये चीज क्या कर सकता है, नाउ यू लुक क्लोजली, दिस इज अ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। अभी इलेक्ट्रोफाइल है तो क्या करेगा, ये रिंग पे अटैक करेगा, कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो पोजीशन पे या फिर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कर सकता है, यहाँ पे कर सकता है, यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। तो अब समझ में आ रहा है सबको कि मेटा पे क्यों होना चाहिए दोनों OH, क्योंकि मेटा पोजीशन पे क्या होता है, सेम ही पोजीशंस दोनों OH एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। ये वाला लेटर से ये OH को हमने लाल OH बोल दिया, तो ये किस पोजीशन को एक्टिवेट कर रहा है, इसको, इसको और इसको, ठीक है। ये वाले OH को लेटर से हम लोगों ने येलो OH बोल दिया, ये किसको एक्टिवेट करेगा, इसको, 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 सेम पोजीशंस को एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये रिएक्शन यहाँ पे हो जाता है। अदरवाइज दिस इज अ वेरी पुअर इलेक्ट्रोफाइल, पुअर इलेक्ट्रोफाइल। पुअर इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर बगल में रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाई रिसोर्सिनॉल में, बिकॉज द रिंग इज हाईली एक्टिवेटेड, क्योंकि मेटा पोजीशन पे 2 OH लगे हैं, they are activating, both of these OH are activating the same positions which are ortho and para. That is why even a weak electrophile like RCONH जो भी है, RCNH, that is able to attack this, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा फिर, अब देख लो, पहले OH OH लिख लो, एंड देन जिस तरह से हम लोग सारे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस करते हैं, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, देन एरोमेटाइजेशन, देन फाइनली डीप्रोटोनेशन, और उसके बाद क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा, वी आर गोइंग टू गेट दिस प्रोडक्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन, हो रिएक्शन इज क्लियर, ठीक है। तो हो रिएक्शन बोल मत देना किसी को, क्योंकि दिस इज नॉट द ऑफिशियल नेम, बस समझाने के लिए आप लोग को बताया। असल में नेम ऑफ रिएक्शन इज होबेन-हाउस रिएक्शन, ठीक है। हो हम लोग समझने के लिए करते हैं, क्योंकि मेटा पे रिसोर्सिनॉल के साथ ये होता है, ठीक है। नाउ अगर इफ यू लुक क्लोजली, दिस इज अ इमाइन, ठीक है, C डबल बॉन्ड ONH, हमने ऑलरेडी इमाइन को देखा है कहाँ पे, साइनाइड के हाइड्रोजनेशन के बाद इमाइन मिलता है अपने को, ठीक है, SnCl2 स्टीफेंस रिडक्शन। अब इस इमाइन को आप हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं H3O+ से, तो इमाइन के हाइड्रोलिसिस पे क्या मिलता है अपने को, एल्डिहाइड मिल जाता है, ठीक है। इमाइन के हाइड्रोलिसिस पे अपने को एल्डिहाइड मिल गया, तो दिस इज OH OH and this is C double bond O R. This is the final product of your Huben-Haus reaction. Is it clear to everyone? यस सर। तो थोड़ा रुक सकते हैं। लिखो लिखो।
इज इट डन? हेलो, Yes, हो sir. गया ये? ठीक। देन तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, बहुत सारे रिएक्शंस देख लिए। ईएएस में और भी कुछ कुछ रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग पहला कैटेगरी ऑफ रिएक्शन ही देख रहे हैं, यही मेनली इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे मतलब एक एक दो रिएक्शन है बस। एक और ईएएस रिएक्शन देखते हैं हम लोग फिनॉल का। दिस इज नोन एज योर फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंज। अच्छा, एक और चीज, ये होहो रिएक्शन जो है, ये पार्टिकुलर जो कंपाउंड है, ठीक है, इधर लिखें इसको, ठीक है। फ्राइज रीअरेंजमेंट को थोड़ी देर के लिए इसको अगर आपका कोई ये कंपाउंड OH OH, ये हो रिएक्शन देगा कि नहीं, बोलो। बोलो वालको, बोलो भाई। क्या हुआ, आप लोग चुप क्यों हो गए? ठीक है, इन सब कंपाउंड में से कौन कौन होंगे जो हो रिएक्शन देंगे, कौन कौन नहीं देंगे, कौन बताएगा? ओके, लेट मी आस्क। अच्छा, भाभी आज नहीं है क्या? ओके, अविंशु आप बताइए, ऊपर वाला कंपाउंड देगा, ये वाला कैटेकॉल? अविंशु? सर हेलो बोलो। सर, वो फर्स्ट वाला देगा और सेकंड वाला देगा? नहीं, हमने क्या बताया, होबर हॉश रिएक्शन देने के लिए जो दोनों OH है वो क्या होने चाहिए, मेटा पोजीशंस पे होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे है, तो ये नहीं देगा। बात समझ में आ रही है? तो ये पहला वाला रिएक्शन आपका होबर हॉश रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। सेकंड वाला देगा, बताओ कौन बताएगा? अश्मित आप बताइए। अश्मित कुछ बोलता नहीं, ठीक है। ओइशी आप बताइए, सेकंड वन नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि पैरा पोजीशन पे। इसका कंपाउंड का नाम क्या है? क्विनॉल, ठीक है, या फिर हाइड्रोक्विनॉल, ठीक है। ओके, और कौन बचा? हाँ, रिया आप बताइए, दिस वन ये देगा कि नहीं? रिया देगा। देगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो एक ही पोजीशन को एक्टिवेट कर रहे हैं मेटा पोजीशंस में, ठीक है, तो ये दे तो देगा। क्या थर्ड OH को कंसीडर नहीं करेंगे? थर्ड OH को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन उसका कुछ उतना सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट 2 अगर OH पे मिल जाए और ऑर्थो या फिर पैरा खाली मिल जाए तो हो जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? सर ओके, सिमिलरली ओइशी आप बताइए, इस केस में होगा कि नहीं? हो जाएगा, ठीक है। ये OH मेटा पे है, तो इसको एक्टिवेट कर रहे हैं, इसको एक्टिवेट कर रहे हैं दोनों, तो इस केस में भी हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट वन कौन बताएगा? रिया आप बताइए, दिस वन होगा। होगा, ठीक है, बहुत अच्छे से होगा इसमें, क्योंकि तीनों जो पोजीशंस है वो सेम ही। अरे यार कहाँ चला जा रहा है, ठीक है। तो तीनों जो हमारे OH हैं वो सेम ही पोजीशंस को क्या कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है। 3 गुना एक्टिवेशन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, और ये भी कर देगा, ठीक है। तो दिस वाज सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू होगो रिएक्शन, ठीक है। देन हाँ, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? फ्राइज रीअरेंजमेंट, ठीक है। फ्राइज रीअरेंजमेंट क्या होता है?
तो फ्राइज रीअरेंजमेंट में आपके पास फिनॉल होता है, ठीक है। इस पे आप रिएक्शन कराते हैं किसका, RCOCl का, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, AlCl3 क्या करेगा, इधर से Cl माइनस खींचेगा, ठीक है। AlCl4 माइनस निकल गया यहाँ से, ठीक है। AlCl4 माइनस निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, RCO प्लस, ठीक है। और ये क्या करता है, ऑक्सीजन पे अटैक कर देता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे स्टेरिफिकेशन रिएक्शन पहले हो जाता है, ठीक है। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन किसका होता था, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का, राइट। कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह असाइल क्लोराइड भी हो सकता है वहां पे, ठीक है। सो दिस इज योर असाइल क्लोराइड, और इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, इधर फिनॉल आपका अल्कोहल, ठीक है। ये दोनों कंबाइन करके क्या बना दिए, ये चीज बना दिए, विच इज अ ईस्टर स्टेरिफिकेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। ओके, इस सबको आप हटा सकते हैं अभी के लिए, ठीक है। सिंपली पहले स्टेरिफिकेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। AlCl3 भी हटा दो, कंफ्यूजन होगा। AlCl3 हम लोग अगले स्टेप में डालते हैं, इस कंपाउंड में फिर हमने क्या डाला, AlCl3, ठीक है। तो AlCl3 क्या है, AlCl3 इज अ लुईस एसिड या फिर इलेक्ट्रोफाइल। तो लुईस एसिड को क्या चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर, किधर अटैक करेगा, डबल बॉन्ड पे कि सिंगल बॉन्ड पे, ठीक है। तो दिस कैन अटैक ऑन दिस डबल बॉन्ड आल्सो, दिस कैन अटैक ऑन दिस सिंगल बॉन्ड आल्सो, ठीक है। कहाँ पे अटैक करेगा, जिधर भी अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो लोन पेयर है इस रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, कॉन्जुगेशन से O पे क्या आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है। ये डबल बॉन्ड जो है वो, ये O जो है डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में ये रेजोनेंस करेगा तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, माइनस चार्ज। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस, तो AlCl3 ऊपर अटैक करेगा। बात समझ में आई सबको, ठीक है। so this is O, this is C डबल बॉन्ड O R, और यहाँ पे आपका क्या हुआ, AlCl3 अब अटैक कर चुका है, ठीक है। AlCl ठीक है, ऑक्सीजन पे प्लस, इस पे माइनस, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, AlCl3 इस पे अटैक करता है, इस पे प्लस चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। नाउ फिर ये आपस में रीअरेंज करते हैं, ठीक है। रीअरेंज इस तरह से करता है कि RCO प्लस यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। और ये AlCl3 फिर इस साइड आ जाता है, RCO प्लस यहाँ से निकल चुका है और यहाँ पे क्या हुआ, AlCl3 आ जाता है, O Al Cl 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 माइनस प्लस RC डबल बॉन्ड प्लस, ठीक है। तो दिस इज जस्ट लाइक योर फीडल क्राफ्ट असैलेशन, ठीक है। नाउ दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल,
और ये बेंजीन रिंग को कहाँ पे अटैक कर सकता है? बेंजीन रिंग को ऑर्थो पे अटैक कर सकता है, इधर ऑर्थो पे अटैक कर सकता है, या फिर इधर पैरा पे अटैक कर सकता है। ठीक है, करा दो, बना दो प्रोडक्ट। पैरा वाला हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्थो वाला आप लोग कर लेना। यहाँ पे क्या हुआ? C डबल बॉन्ड O R, यहाँ पे क्या हुआ? O जुड़ा है किससे? AlCl3 माइनस के साथ। ठीक है, फाइनली इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे OH आ जाता है। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? फ्राइज रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्राइज रीअरेंजमेंट। आप ध्यान से देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शंस दिखेंगे, या तो वो एडिशन रिएक्शंस है, ठीक है, जैसे हम लोगों ने एडिशन रिएक्शन देखा था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो अटैक करता था हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड्स पे, या फिर वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। ठीक है, हम लोगों ने पूरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा है, SN1 SN2 वगैरह वगैरह। या फिर वो एलिमिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग देख चुके हैं कैसे अल्कीन बनता है। ठीक है, या फिर ये चौथा कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस है जो अभी तक शायद आप ज्यादा नहीं देखे होंगे, दिस इज योर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। मतलब जो प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट है उसका क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस आपस में क्या कर रहे हैं? रीअरेंज कर रहे हैं। जैसे इस कंपाउंड को अगर आप ध्यान से देखो, इसका स्ट्रक्चर आप इसको कैसे ड्रॉ करोगे? RCO2। ठीक है, RCO2 एक तरफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम देख रहे हैं, और यहाँ पे क्या होगा? 6 कार्बन C6H5। ठीक है, दिस विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दिस थिंग। इस कंपाउंड का भी यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, इसका देखो RCO को अलग कर दो, RCO इधर, यहाँ पे बेंजीन के पास क्या है? C6H5 ना, C6H5 और एक O। ठीक है, इसको भी अगर आप रीअरेंज करो तो क्या हो जाएगा? RCO2 C6H5। ठीक है, ये भी क्या है? RCO2 C6H5। तो बेसिकली हुआ क्या रिएक्शन में? कुछ एडिशन नहीं हुआ, कुछ एलिमिनेशन नहीं हुआ, कुछ सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, क्या हुआ? रीअरेंजमेंट हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन प्रोडक्ट्स हमारे बदल गए। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी से। इज इट क्लियर? आगे बढ़े, क्या हो गया? यस सर। तो ये था आपका फ्राइज रीअरेंजमेंट। इसी तरह का एक और रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है, क्लेजन रीअरेंजमेंट। ठीक है, क्लेजन रीअरेंजमेंट किसका होता है? अलाइल विनाइल ईथर का। अलाइल विनाइल ईथर। ठीक है, अलाइल विनाइल ईथर बोले तो क्या? ठीक है, तो दिस CH2 दिस। ठीक है, ध्यान से देखो, ये वाला रीजन क्या है आपका? दिस पार्ट इज विनाइल। ठीक है, और नीचे वाला पार्ट ड्राइंग दैट विथ ब्लू, ये वाला जो पार्ट है दिस इज योर अलाइल। ठीक है, और ईथर है, तो अलाइल विनाइल ईथर क्या करता है? क्लेजन रीअरेंजमेंट करता है। ठीक है, कैसे करता है? ठीक है, ये आपका अलाइल विनाइल ईथर मान लो, मानोगे क्या? सही में है। ठीक है, दिस इज योर अलाइल विनाइल ईथर। इसको आप क्या करते हैं? हीट करते हैं। हीट करने पे यहाँ पे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होता है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, में साइक्लिक इंटरमीडिएट बनते हैं और क्या होता है? साइक्लिक इंटरमीडिएट बनते हैं और क्या होता है? प्रोडक्ट्स हमारे फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है,
तो ये इलेक्ट्रॉन आपका इधर शिफ्ट हो रहा है, मतलब इस कार्बन पे क्या आ रहा है, डेल्टा माइनस, इस कार्बन पे डेल्टा प्लस, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहा है, मतलब इस कार्बन पे डेल्टा माइनस, इस कार्बन पे डेल्टा प्लस। ये इधर शिफ्ट हो रहा है, मतलब इस कार्बन पे डेल्टा माइनस, इस कार्बन पे डेल्टा प्लस। तो फाइनली बॉन्ड क्या क्या बन जाएगा देख लो। सिंगल बॉन्ड ये वाला आपका टूट चुका है, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है, यहाँ पे डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस के बीच सिंगल बॉन्ड आ चुका है। नीचे इन दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड पहले से है, दूसरा बॉन्ड टूट गया। यहाँ इस दोनों के बीच डबल बॉन्ड आ चुका है, ये बॉन्ड टूट चुका है, ठीक है। सो दिस इज योर क्लेजन रीअरेंजमेंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लो, डबल बॉन्ड ऊपर देखो, अच्छा अच्छे देखने को लगेगा, ठीक है। सो दिस इज योर क्लेजन रीअरेंजमेंट, ठीक है। Sorry. So this is your allyl vinyl ether, AVE. बायोलॉजी में ए मतलब क्या होता है, चिड़िया होता है ना। सॉरी। ठीक है। नाउ सिमिलर रिएक्शन विल बी शोन बाय एप। एप मतलब क्या, गोरिल्ला वगैरह जो होता है, जो भी, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, अलाइल फिनाइल ईथर। ठीक है, अलाइल फिनाइल ईथर बोले तो विनाइल की जगह आपको क्या करना है, फिनाइल डाल देना है, ठीक है। अलाइल ऐसे ही रहेगा। तो दिस इज योर अलाइल, यहाँ पे क्या करना है आपको, फिनाइल डाल देना है, ठीक है। सो दिस इज योर एप, अलाइल फिनाइल ईथर। या फिर इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से अगर आप ड्रॉ करो, ठीक है, बेंजीन को इज्जत देते हुए, ओ कट कट कट, ठीक है। दिस इज अलाइल फिनाइल ईथर। यहाँ पे भी वही काम करना है आपको बेसिकली। ये जो आपका कंपाउंड है वो कट कट कट, ठीक है। इसमें आपको जैसे पिछले केस में इलेक्ट्रॉन घुमाया आपने, इधर भी घुमाना है, ठीक है। कैसे घुमाएंगे, इसको इधर, इसको इधर, इस डबल बॉन्ड को इधर, ठीक है। हीट करने से होता है ये। अगेन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो आप, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो इस पे डेल्टा माइनस, सॉरी इस पे डेल्टा प्लस, सॉरी ब्लू से कर देना मेरे को। तो इस कार्बन पे क्या होगा, डेल्टा प्लस, इस कार्बन पे क्या होगा, डेल्टा माइनस, ठीक है। इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इधर गया है, ऑक्सीजन पे डेल्टा प्लस, इधर डेल्टा माइनस। इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इधर गया है, इस पे डेल्टा प्लस, इस पे डेल्टा माइनस। प्लस माइनस ने बॉन्ड बना लिया। यहाँ पे डबल बॉन्ड गायब हो चुका है, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है प्लस माइनस के बीच। यहाँ पे क्या होगा, सॉरी यहाँ पे ये क्या होगा, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, फिर डबल बॉन्ड वो बना लेंगे, यहाँ पे ये, यहाँ पे, ठीक है। नाउ दिस इज द कीटो फॉर्म। फिर ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट कर सकता है। तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म ये कैसे करेगा, यहाँ पे ये एसिडिक हाइड्रोजन है, कट कट, इसका सॉरी इनॉल फॉर्म होगा। इनॉल फॉर्म इज नॉट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। इनॉल फॉर्म इज एक्चुअली, कीटो इनॉल में इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर सकता। तो प्रोडक्ट आपका क्या हो गया, दिस OH डबल बॉन्ड, ठीक है। दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये भी फिनॉल बनाने का एक तरह से आपका तरीका है, क्लेजन रीअरेंजमेंट। प्रोडक्ट आपका क्या है, फिनॉल, ठीक है। सेम रिएक्शन कैन टेक प्लेस एट para position also, ठीक है। खैर उसको हम लोग बाद में देखेंगे, ओके।
दिस रिएक्शन इज सर क्लियर टू एवरीवन? हाँ बोलो। सर इधर मतलब जो इक्विलिब्रियम हो रहा है तो इसके लिए आपका यील्ड कम नहीं हो जाएगा इसका? नहीं, यील्ड आगे की तरफ ज्यादा होगा ना, इनॉल फॉर्म में ज्यादा है। इनॉल फॉर्म एरोमेटिक है ना, हमने बताया था। इनॉल फॉर्म जब एरोमेटिक होता है तो क्या होता है, यील्ड ज्यादा होता है उसका, मतलब इक्विलिब्रियम इनॉल के तरफ ज्यादा शिफ्ट होगा। ठीक है, ओके। तो ये एरो आप छोटा ड्रॉ करो, पीछे की तरफ कम जा रहा है, आगे की तरफ ज्यादा जा रहा है। ठीक है, ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, okay, so these are some of the examples of your methods by which you can generate phenol. कुछ कुछ reactions आपको, this is example of method of preparation of phenol. ठीक है, इससे पहले जो हम लोग देखे थे regeneration, this is also example of, this is a reaction of phenol. ठीक है, Fry's rearrangement. इसके पिछले वाला हम लोगों ने देखा था, all of these are reactions of phenol. ठीक है, लास्ट वाला बस method of preparation of phenol. ठीक है, ओके, नोट कर लिया, आगे बढ़े। ठीक है, now phenol can exhibit other reactions also. हाँ, एक बहुत फेमस रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का ही, in case of phenols. ठीक है, that is reaction with bromine water, Br2 water. So bromine water क्या होता है, this is a very powerful oxidizing agent. तो ये Br plus बहुत सारा जनरेट करता है, and because OH activates the ring so much, यहाँ पे multiple halogenation हो जाता है। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, हर जगह ब्रोमीन लग जाता है। ठीक है, so this is one famous example of EAS. In fact, so much and so कि अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कोई दूसरा ग्रुप अगर पहले से प्रेजेंट हो, ठीक है, SO3H, ठीक है, कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी प्रेजेंट हो, लेट अस से COOH, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है SO3H, इस पे भी अगर आपने क्या करा है, Br2 वाटर का रिएक्शन करा है, तो सबको हटा के क्या होता है यहाँ पे Br लग जाता है। ठीक है, OH, this will be Br, Br, Br। ठीक है, मतलब यहाँ से क्या हुआ, सल्फोनेशन, डीसल्फोनेशन। ठीक है, CO2 चला गया, यहाँ से क्या हो गया, डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 चला गया, यहाँ से क्या हुआ, डीसल्फोनेशन। ठीक है, और हर जगह क्या आ गया, ब्रोमीन ब्रोमीन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? दिस इज अ वेरी पावरफुल एग्जांपल ऑफ योर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, देन अनदर, बाकी सब रिएक्शंस फिनॉल के इजी है। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी ऑफ रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, फिनॉल रिंग कैसे ऑक्सीडाइज होता है, सब छोटे मोटे रिएक्शंस हैं। CrO3 से पास करो इसको, आपका क्या हो जाता है यहाँ पे, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड। ठीक है, ये बन जाता है। देन नेक्स्ट रिएक्शन इज रिडक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का रिडक्शन कैसे कैसे करा सकते हैं अपन, ये आपका हो गया फिनॉल। दो तरीके से आप इसका रिडक्शन करा सकते हैं, या तो अगर इसका आप H2PD करा दें, ठीक है, तो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में हाई प्रेशर पे होता है। ठीक है, क्योंकि एरोमेटिसिटी भंग होने वाली है इसकी, तो आपका साइक्लोहेक्सिनॉल बन जाता है। ठीक है, सारे डबल बॉन्ड जो अनसैचुरेशन है वो खत्म हो जाता है। देन और क्या, H2PD हाई प्रेशर, और कैसे, हाँ जिंक डाल के कर सकते हैं। ठीक है, जिंक डाल के आपको सीधे बेंजीन मिल जाता है प्लस Zn। These are examples of your reduction of phenol. ठीक है, okay, so these are all the reactions of phenol. चैप्टर हो गया आपका खत्म, अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल। आप लोग हिमांशु पांडे अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेवल 2 30 क्वेश्चन हमने दिया था, नेक्स्ट 100 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्लास कब होगा, ट्यूसडे को, राइट? तो सैटरडे संडे मंडे 3 दिन टाइम है आपके पास।
नहीं मंडे को है ना क्लास, मंडे को है क्लास, ट्यूसडे को है क्लास, ठीक है। तो 3 दिन टाइम है, अच्छे से आप लोग नेक्स्ट 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए हिमांशु पांडे के। ट्यूसडे को विल डिस्कस। एनीवन हैज एनी डाउट? कुछ पूछना है किसी को? Restoration of aromaticity, क्या? the restoration of aromaticity वो वाला स्लाइड लिख। क्या डाउट है इसमें? तो लिखना था थोड़ा सा लास्ट अच्छा, में। ओके ओके। चलो ठीक है, तो फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। लिख लिया आपने रिया? ओके, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।